خوش آمدید عجیب کہانیاں میں آج میں اس ہفتے کی سب سے عجیب، پراسرار اور ناقابل یقین کہانیاں آپ کے لیے ایک جگہ پر لایا ہوں۔ آخر تک ضرور رہیے گا۔ یقین کریں آخری کہانی سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ 1935 میں ایک کتاب آئی جس کا نام تھا تیسری آنکھ۔ رات بھر میں یہ کتاب اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ اس میں دعوی تھا کہ یہ ایک نوجوان لڑکے کی سچی کہانی ہے جسے تبت کے ایک خفیہ مٹھ میں بھیجا گیا، جہاں بھکشوؤں نے اس کی پیشانی میں سوراخ کر کے اس کی روحانی طاقتیں جگا دیں۔ لاکھوں لوگوں نے ایک ایک لفظ سچ مان لیا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ لکھنے والا وہ تھا ہی نہیں جو وہ کہہ رہا تھا۔ جو شخص اپنے آپ کو لوبسانگ رامپا بتا رہا تھا، وہ اصل میں سیرل ہنری ہاسکن تھا، انگلینڈ کے علاقے ڈیون کا رہنے والا، ایک پلمبر کا بیٹا، فیکٹری میں ہاتھ سے کام کرنے والا عام آدمی۔ نہ کبھی تپت گیا، نہ کسی مٹھ کی دہلیز دیکھی، اور یقیناً کسی تپتی پجاری نے اس کی کھوپڑی نہیں کھولی تھی۔ اس نے بس ہوا میں سے ایک پوری روحانی زندگی گھڑ لی تھی۔ جب اخباروں نے پردہ فاش کیا تو ہاسکن نے انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے ایسی صفائی دی جو جھوٹ سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ کہنے لگا کہ اس کے جسم میں ایک اصل تپتی لاما کی روح آبسی ہے جس کا نام ہے ٹیوزڈے لوبسانگ رامپا۔ وہ لاما اس کے جسم کو استعمال کر کے کتابیں لکھ رہا ہے اور مشرقی حکمت مغرب تک پہنچا رہا ہے۔ ٹیوزڈے نام کے بارے میں بولا کہ تبت میں بچوں کا نام اس دن پر رکھتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوں۔ پڑھنے والے اور نقاد آگ بگولا ہو گئے۔ یہ شخص پوری روحانی سوانہ عمری بنا کر بیچتا رہا، سچ بتا کر بیچتا رہا، اور جب پکڑا گیا تو روح نے قبضہ کر لیا والی کہانی لے آیا جو لگتا تھا ابھی اسی وقت سوچی ہے۔ بڑے بڑے اخباروں نے اسے دھوکے باز لکھا۔ لائبریریوں نے اس کی کتابیں الماریوں سے اتار دیں، لیکن پھر کچھ عجیب ہوا۔ تیسری آنکھ کبھی بند نہیں ہوئی، آج بھی چھپتی ہے، آج بھی بکتی ہے، آج بھی وہ لوگ پڑھتے ہیں جو پوشیدہ سچائیوں کی تلاش میں ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہاسکن کو مکمل رد کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ چاہے لکھنے والا کوئی بھی ہو، کتاب میں اصل روحانی علم ہے، اور چند لوگ تو یہ بھی کہتے رہے کہ شاید، بس شاید، روح والی بات سچ ہو اور کوئی تپتی شعور واقعی اس کے قلم کو چلا رہا تھا۔ سیرل ہاسکن پردہ فاش ہونے کے بعد بھی 25 سال زندہ رہا، کتابیں لکھتا رہا، عقیدت مند جمع کرتا رہا جنہیں اس کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ 1981 میں مرا اور آخری سانس تک یہی کہتا رہا کہ وہ ایک قدیم لاما کی حکمت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ بتائیں، کیا یہ ایک چالاک ٹھگ تھا جس کی لاٹری لگ گئی، یا آخر اسے خود یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور میں اس وضاحت کی قدر کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ لوکرافٹ کی یہ نظم ایک ادبی تخلیق ہے، ممنوعہ علم کی تلاش اور اپنی جنت کو خود تباہ کرنے کا استعارہ۔ یہ خوبصورت ضرور ہے، لیکن آپ کے فارمیٹ کے لیے موزوں نہیں۔ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، ایک حقیقی تاریخی ماما۔ میں ان میں سے کسی ایک پر مکمل اسکرپٹ لکھ سکتا ہوں۔ ڈیاٹلوف پاس واقعہ 1950 روس نونوگوان کوہ پیما، کوئی گواہ نہیں، کوئی جواب نہیں۔ فلینن آئلز لائٹ ہاؤس 1900 3 محافظ غائب، میز پر کھانا لگا ہوا، دروازہ بند۔ میری سیلسٹ 1800 کا مریبداری، جہاز بالکل سلامت، عملہ غائب، کوئی نشان نہیں۔ دوسرا راستہ، ایک فرضی وسپرڈ فائل۔ نظم سے متاثر ہو کر ایک خیالی لیکن قابل یقین واقعہ تخلیق کریں۔ کوئی جگہ، کوئی تاریخ، کوئی گواہ۔ آپ کس سمت جانا چاہیں گے؟ 1899 کی بات ہے۔ جوہانس فرینزل نام کا ایک جرمن ماہر فطرت،
अर्जेंटीना के सूबे कोर्दोबा की नमकीन ज़मीनों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर रहा था। अचानक उसकी नज़र किसी ऐसी चीज़ पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी मखलूक जो जानवरों की पूरी दुनिया में कहीं फट नहीं बैठती थी। उसने उसे नाम दिया, सालिनेला साल्वे, और फिर वो मखलूक गायब हो गई। 1 सदी से ज़्यादा अरसा गुजर गया। आज तक कोई उसे दोबारा नहीं ढूंढ सका। फ्रेंज़ल रियो क्वार्तो के नमकीन दिलदली इलाकों में काम कर रहा था। सफ़ेद चमकती ज़मीन, खारी पानी और हर तरफ नमक ही नमक। ये वो ज़माना था जब डारोन को गुज़रे अभी 10 साल भी नहीं हुए थे और खोर्दबीन हर रोज़ नई दुनियाएं सामने ला रही थी। फ्रेंज़ल कोई अफवाहों के पीछे भागने वाला आदमी नहीं था, वो पक्का साइंसदान था। नमूने उठाए, लेबॉरेटरी ले गया और जो देखा उसे बारीकी से लिखता गया। उसने जो बयान किया वो किसी किताब में नहीं था। सालिनेला कई खलियों से बनी थी, मगर बस एक तह। उसके जिस्म पर बारीक बारीक बालों जैसी साख्तें थीं, जिनसे वो हरकत करती और खाना खाती थी। इसका सिर अलग था, दुम अलग, और अफजाइशी नस्ल बस खुद को दरमियान से काट लेती थी, जैसे कींची चला दी हो। फ्रेंज़ल ने उसे गौर से देखा, खाके बनाए, लेबॉरेटरी में पाला भी, और फिर वो मखलूक नज़र आनी बंद हो गई। साल गुजरे, दहाइयाँ गुजरे। दूसरे साइंसदानों ने वही तजर्बा दोहराने की कोशिश की, नाकाम रहे। अर्जेंटीना में, उन्हीं नमकीन ज़मीनों में कहीं कुछ नहीं मिला। 60 और 70 की दहाई में माहरीन ने सोचना शुरू किया कि शायद फ्रेंज़ल से गलती हुई। शायद उसने कोई और जानदार देखा था। आहिस्ता आहिस्ता साइंसी दुनिया ने फैसला सुना दिया, सालिनेला साल्वे शायद कभी थी ही नहीं। मगर फ्रेंज़ल के नोट आज भी मौजूद हैं, उसके खाके आज भी मौजूद हैं, और सवाल आज भी मौजूद है। 2000 की दहाई में म्यूनिख के माहरीनी हैवानियात ने अर्जेंटीना और चिली की नमकीन झीलों में बाकायदा मुहिम चलाई, सालिनेला का कोई निशान ढूंढने के लिए। कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं। तो अब सोचें, अगर ये मखलूक सच में थी, तो ख़त्म कैसे हुई? और अगर थी ही नहीं, तो अपने ज़माने का एक काबिल और संजीदा साइंसदान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? आप क्या समझते हैं? सालिनेला हकीकत थी या महज एक साइंसी धोखा? नीचे बताएं। मामे बीतल खला का राज के ख़ज़ा में इशफोर्ड गांव पर एक ऐसी आफत आई जिसका नाम लेना भी शर्म की बात थी। ना कोई गरज चमक, ना कोई ज़ाहिरी खौफ। ये आई नालियों के रास्ते से। शुरुआत हुई नौकरों की सरगोशियों से। कुछ इनके पिछले रास्तों में दब्बी दब्बी आवाज़ों में बातें होते। बीतल खला में कुछ है, ना चौहा, ना रकावट, एक आवाज़, एक वजूद, जो इस वक्त बोलता जब आप अकेले होते, दरवाज़ा बंद, और आपकी इज्जत चंद लम्हों के लिए मजबूरी के हवाले। पूरे गांव में बयानात एक जैसे थे। सेठ के नीचे से एक चीख उठती, बारिक कराहती, जैसे कोई बात कर रहा हो। और फिर सबसे अजीब बात, जिस लम्हे इंसान फारिग होता, नीचे से एक दबी हुई चीख निकलती, जैसे इस मखलूक को भी वही तकलीफ हो रही हो, या शायद वही सुकून। और ये एक घर में नहीं रहता था, ये नालियों में सफ़र करता, एक घर से दूसरे, फिर तीसरे। नौकरानियां कहते कि ऐसा लगता जैसे कोई इंतहाई ज़ाती लम्हे में घूर रहा हो, कोई ऐसी चीज़ जिसका वजूद ही नहीं होना चाहिए था। एक ही तरीका था उसे भगाने का, पानी से अच्छी तरह सफाई, लेकिन सिर्फ अगली बार तक। फिर मामला और गहरा हुआ। एक आवाज़ दो बनी, दो चार, तह दर तह, एक दूसरे पर चढ़ती हुई। मगर इस खौफ के पीछे कुछ और भी था, एक गहरी तन्हाई, एक ऐसी बेचैनी जैसे वो मखलूक जुल्म से नहीं, बल्कि नाकाबली बर्दाश्त अकेलेपन से चीख रही हो। आखिरी गवाही एक नौकरानी की डायरी में मिली, हाशिए पर जल्दी से लिखा हुआ। उसने लिखा, जो भी इन गहराइयों में गरा, वो कभी वापस नहीं आया।
गांव वालों ने वो घर छोड़ दिए। हुकाम ने फाइलें बंद कर दें। अशफोर्ड ने फिर कभी उसका जिक्र नहीं किया। तो बताएं, इन नालियों में क्या छिपा था? और जो इस गहराई में गिरा, वो आखिर गया कहाँ? आप क्या सोचते हैं? ओशुई। नंबर 1873 ए की एक सुबह, एक लाइट हाउस का नगहबान, जिसका नाम थॉमस विटमोर था, बस यूं गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। 34 साल की उम्र, सेंटिनल पॉइंट पर तैनात, और पीछे छोड़ा सिर्फ एक सिराग, आधी पी हुई चाय की प्याली। विटमोर ने 7 साल इस लाइट हाउस की देखभाल की थी, बगैर किसी एक वाक़ये के। ऐसा आदमी जिसे आप मिलते तो भूल जाते, खामोश, काबिल भरोसा। जो लोग गायब नहीं होते, वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन 14 नवंबर को उसका माविन जेम्स कोरी सुबह सवेरे पहुंचा तो देखा। रोशनी अभी तक जल रही थी, हालांकि उसे कब का बुझ जाना चाहिए था। बिस्तर तरतीब से लगा हुआ था। कमरे में कोई अलट पलट नहीं। किचन में रजिस्टर खुला पड़ा था और विटमोर की लिखाई बिल्कुल सीधी, पुरस्कोन। मौसम बदल रहा है, सब ठीक है। फिर कुछ नहीं। इसका कोट और जूते खोंटी से गायब थे, लेकिन यहाँ मामला और उलझ जाता है। विटमोर हर रोज़ अपने साथ एक तेल का कीन लेकर चलता था, मामूल के चक्कर के लिए। वो कीन अलमारी में रखा था, हाथ तक नहीं लगाया गया था। 7 साल में एक बार भी वो बगैर इस कीन के बाहर नहीं निकला था। एक बार भी नहीं। लाइट हाउस की ऊपरी रेलिंग, जो 140 फट की ऊंचाई पर थी, बिल्कुल सलामत थी। ना कोई निशान, ना कोई कशमकश का सुराग। दरवाजे पर कुछ नहीं। नीचे समंदर में मछिरों ने किसी को नहीं देखा। सरकारी कहानी बड़ी सादा थी। तन्हाई ने उसे तोड़ दिया। सर्दियों में लाइट हाउस पर ऐसा हो जाता है। रात को समंदर में चला गया होगा। फाइल बंद। लेकिन जो लोग विटमोर को जानते थे, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। साथियों ने कहा, ये आदमी पत्थर की तरह मजबूत था, टूटने वालों में से नहीं था। ये जवाब कागजों के लिए था, हकीकत के लिए नहीं। फिर 1942 में, पूरे 38 साल बाद, स्कॉटलैंड के एक साहिल पर एक औनी कोट बहकर आया, शमाली समंदर के पार, मीलों दूर। इंदर दर्जी का निशान लगा था, थॉमस विटमोर। और वो कोट तकरीबन बिल्कुल ठीक था। 38 साल समंदर में रहने के बाद जैसी हालत होनी चाहिए थी, वैसी हरगिज़ नहीं थी। वो कोट रिकॉर्ड ऑफिस में एक भूरे लिफाफे में आया, गलत जगह रखा गया और भला दिया गया। तो अब बताएं, वो कोट शमाली समंदर कैसे पार कर गया और इस हाल में कैसे बचा रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये है, विटमोर इस रात लाइट हाउस छोड़कर आखिर कहाँ जा रहा था? आपके ख्याल में उसके साथ असल में क्या हुआ? नीचे ज़रूर बताएं। 1904 की सर्दियों में प्रोफेसर पार्किंस इंग्लिस्तान के साहली कस्बे ब्रंस्टो पहुंचे। ज़ाहिरी तौर पर तो वो अपना गोल्फ सुधारने आए थे, लेकिन एक साथी ने उन्हें कहा था कि करीब ही एक पुरानी सलीबी जंगजुओं की जगह है, एक कदीम खानकाह जिसे सदियों से समंदर आहिस्ता आहिस्ता नगलता जा रहा था। प्रोफेसर साहब गलूब सराय में ठहरे, वाहद जगह जहां उनकी किताबों और काम के लिए कमरा काफ़ी बड़ा था। बिस्तर 2 का था, मगर सराय वाले के पास दूसरा कमरा नहीं था। गुजारा करना पड़ा। वो जगह साहल के करीब थी, कस्बे से कोई पून मील शमाल में। एक दोपहर पार्किंस ने वहां चक्कर लगाया। ना कोई पत्थर, ना कोई निशान, बस घास, रीत और शमाली समंदर की आवाज़। मगर इस रात कमरे में पुरानी किताबें अलटते पलटते उनके हाथ कुछ लगा। एक छोटी सी कांसी की सेटी, पुरानी, जिंग आलोद और अजीब। इस पर लातीनी में कुछ लिखा था। पूरी इबारत समझ ना आई, मगर एक जुमला बिल्कुल वाज़ेह था, अगर तुमने फूंका तो मैं आऊंगा। पार्किंस ने उसे लटा पलटा,
हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और चमनी की शेल्फ पर रख दिया। इस रात नींद न आई। बार बार आंख खुलती, खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आती, जैसे रेत पर कदमों की चाप, मगर अंधेरे में साहल पर कौन होता। अगली सुबह थके हारे उठे, गोल्फ भी खराब खेला, जल्दी वापस आ गए। अगले कई दिन यही सिलसिला रहा। खर्चने की आवाज़ें, कुछ घसीटने की आहट, एक बार, बस एक बार, शीशे के पार से कोई आवाज़, दबी दबी, इसरार भरी, जैसे कोई बुला रहा हो। पार्किंस ने खुद को समझाया, ये हुआ है, बस हुआ। साहल पर ऐसा ही होता है। फिर चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें खुद समझ न आई। ना पूरी नींद में, ना पूरी जाग में, उन्होंने शेल्फ से वो सीटी उठाई और फूंक दी। बस एक बार, एक धीमी सी आवाज अंधेरे में, और फिर सब कुछ रुक गया। सुबह की रोशनी में जब उन्होंने खिड़की से नीचे देखा, रेत पर निशान थे, लंबे, सोचे समझे निशान, जैसे कोई चीज घुसती आई हो और फिर सीटी की आवाज के बाद रख गई हो, मड़ी हो और वापस समंदर में चली गई हो। पार्किंस ने उसी दोपहर अपना सामान बांधा और ब्रंस्टो छोड़ दिया। जो देखा, या जो उन्हें लगा कि देखा, वो कभी किसी को ना बताया। और वो सेटी ग्लूब सराय की अलमारी की गहराई में दफन कर गए। अब बताएं, क्या उन्होंने उसे इसलिए छोड़ा कि भूल जाना चाहते थे, या इसलिए कि डर था अगर साथ ले गए तो जो पीछे मर गया था वो फिर आ जाएगा। 1945 में बहरहाल काहल के ऊपर 35,000 फट की बुलंदी से एक फौजी त्यारा नीचे उतरा। जब तक वो सीधा हुआ, इंद्र सवार सब लोग मर चुके थे, ना टकराव से, ना आग से, बस हुआ से, जो चंद सेकंडों में जहर बन गई। जरा तसव्वुर करें, आप डगलस C-124 ग्लोब मास्टर के अंदर बैठे हैं, एक देवेकल फौजी जहाज जो समंदरों के पार फौजियों को ले जाने के लिए बना था। जनवरी का महीना, ऊपर हदियां जमा देने वाली ठंड, तैयारे का केबिन बंद है, इंद्र सांस लेने के काबिल हुआ मौजूद है। बाहर आसमान पर हुआ इतनी पतली है जैसे खला हो। आमले की जिंदगी उसी महर पर टकी है और उन्हें अभी तक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। फिर समंदर के ऊपर 35,000 फट पर कुछ टूट जाता है, शायद कोई दरार, शायद कोई जोड़ जो कभी ठीक से बंद ही नहीं था। केबिन में रिसाव नहीं होता, धमाके से फटता है, दबाव पत्थर की तरह गिरता है। इंद्र की हुआ पलक झपकते बाहर निकल जाती है। इंसानी जिस्म इतनी तेजी से फेफड़ों से हुआ नहीं निकाल सकता। फेफड़े फट जाते हैं, नाक की हड्डियां फट जाती हैं, आंखों की रगें फट जाती हैं, होश तकरीबन फौरी ख़त्म हो जाता है और त्यारा बेकाबू बहराल काहल में जा गिरता है। सरकारी तहकीकात में मिलबा नहीं मिला, लाशें नहीं मिलें, समंदर ने कुछ नहीं अगला। जो मिला वो था लागबक में एक नोट कि प्रेशर गेज हफ्तों से गलत पड़ रहा था। किसी ने तोजा नहीं दी। आमले को कोई वार्निंग नहीं मिली, ऑक्सीजन मास्क लगाने का वक्त नहीं मिला। उन्हें पता ही नहीं चला कि महर टूट चुकी है जब तक उनके अपने जिस्म उन्हें बताने लगे। C-124 आज तक नहीं मिला। आमले के आखिरी लम्हात का किसी को इल्म नहीं, बस इतना मालूम है कि कहीं अंधेरे समंदर के ऊपर जिंदगी और मौत के दरमियान फासला इतना ही पतला था जितना उनके गर्द लोहे का वो खूल। आप बताएं, क्या ये वाकई कोई ऐसी दरार थी जो किसी को नजर नहीं आई, या आपके ख्याल में कुछ और हुआ था? नीले कनवे की दहलीज 1880 से वई के खज़ां में ऐशोरत हवेली के बाग में काम करने वाले मजदूरों को कुछ ऐसा मिला जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। एक कनवा, कोई नया नहीं, ईंटें पुरानी, पोसीदा, जैसे सदियों से ज़मीन के अंदर दबा किसी का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन असल बात यहाँ से शुरू होती है, जब कुछ ख़ास लोगों ने एक मखसूस तरीक़े से उस कनवे को इस्तेमाल किया, वो तरीक़ा जो हर रिकॉर्ड से मिटा दिया गया, तो वो सिर्फ इंदर नहीं झांकते थे,
वो उसमें से गुजर जाते थे और निकलते कहीं और से थे। जहां वो पहुंचते वो एक जंगल था, लेकिन किसी नक्शे पर नहीं मिलता। लोग उसे बेनाम जंगल कहते थे। वहां न पूरी रात थी न पूरा दिन, बस एक अजीब सा धुंधलका, जैसे फजर और मगरब के दरमियान वक्त रख गया हो। एक कुची सड़क थी जो शीशे की तरह हमवार थी। न जाने कितने कदमों ने उसे रगड़ रगड़ कर चुकना कर दिया था। जो भी इस रास्ते से हटा, दरख्तों की तरफ मड़ा, वो गायब हो गया बिल्कुल। और जो वापस लौटने की कोशिश करते, वो भी रास्ता खो बैठते। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कोई भी दो मुहिम जो एक जैसा नक्शा लेकर नहीं लौटे। एक टीम पूरी तफसील के साथ वापस आती और अगली टीम वहां जाती तो सारा मंजर बदला हुआ मिलता। फिर भी, और यही बात रोंगटे खड़े कर देती है, वो पुराना कनवा हमेशा सफ़र के दोनों सुरों पर मौजूद होता, जैसे जगह खुद मड़कर उनके गर्द बंद हो गई हो। और वो वहां अकेले नहीं थे। लोगों ने जंगल में साए देखे, इंसानों जैसे, मगर कुछ गलत था उनमें। जब सीधा ना देखो तो उनके चेहरे बदल जाते। कुछ तो ऐसे लगते जैसे खुद अपनी इस तब्दीली से परेशान हैं, जैसे उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बन रहे हैं। ये अलग अलग मखलूक़ात थीं या एक ही चीज़ के अनगिनत रूप, कोई ना जान सका। और सरकारी रिकॉर्ड में जो बात सबसे ज़्यादा डराती है वो ये है, जिन लोगों ने इस जंगल को लिखकर बयान करने की कोशिश की, उनके साथ कुछ हुआ। वो तहरीर पढ़ने वालों तक भी कोई अजीब असर पहुंच गया। बस इस जंगल का नाम लेना ही खतरनाक हो गया था। फिर भी हमें रखी नहीं। साल दर साल लोग इस कन्वे में उतरते रहे, हर बार थके हारे, बदले हुए, टूटे टूटे जमलों में बातें करते वापस आते, और हर बार ऐसे नक्शे लाते जो पहले वालों से बिल्कुल अलग होते। वो कनवा आज भी वहीं है, इंतज़ार में, और सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं। क्या वो कनवा लोगों को किसी और जगह ले जाता है या किसी और चीज़ में? आप बताएं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस कन्वे में उतरने की हिम्मत करेंगे? ले फरहाद का पहाड़। फारसी शायरी के सुनहरी दौर में एक ऐसा मुजस्मा साज गुजरा, जिसने मोहब्बत में पहाड़ का सीना चीर कर सीढ़ियां तराशें, और फिर एक झूठ ने उसे तबाह कर दिया। इसका नाम था फरहाद, और उसकी कहानी 1000 साल से फारसी तहजीब में गूंज रही है। ज़रा तसव्वुर करें, बादशाहों का दौर, सासानी सल्तनत, रेशम के रास्तों पर तुजारत का शोर और फिरोजी टाइलों से चमकते महल। यहीं रहता था फरहाद, हथौड़े और छीनी वाला एक कारीगर, जिसके हाथ पत्थर को मिट्टी की तरह मोड़ देते थे। न शहजादा था, न अमीरजादा, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो उसे खतरनाक बनाती थी। एक अंधी, जानलेवा मोहब्बत, और वो मोहब्बत थी शेरें से, एक हसीन और ज़हीन शहजादी, जो पहले से खसरो परवेज़ यानी खुद शाही ईरान के लिए मुकर्रर थी। खसरो को फरहाद की दीवांगी का पता था। उसने सोचा, या तो ये कमज़ोरी है या फिर मेरे लिए एक खेल। बादशाह ने शर्त रखी, पहाड़ की ठोस चट्टान में सीढ़ियां तराशो, जिंदा पत्थर काट कर रास्ता बनाओ, और अगर कर दिखाया तो शेरें तुम्हारी। फरहाद ने यकीन कर लिया। शायद उसके पास कोई और चारा भी न था। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, फरहाद का हथौड़ा पहाड़ से टकराता रहा। पत्थर की धूल उसकी जल्द पर राख की तरह जमती रही। हाथों से खून बहा, कमर झक गई। लेकिन हर सीढ़ी के साथ वो सोचता, एक दिन शेरें का हाथ थामे यहां से गुजरूंगा। काम इबादत बन गई। पहाड़ उसका कबला बन गया। फिर जब आखिरी सीढ़ियां तराशी जा रही थीं, जब मंजिल बिल्कुल करीब थी, एक काजिद आया। बादशाह ने भेजा था। चेहरा उदास, खबर भारी। शेरें नहीं रही। अचानक, बेवजह, चली गई। फरहाद के हाथ से हथौड़ा गिर गया। यहां कहानी कई हंसों में बट जाती है। कुछ रिवायतों में है कि उसने खुद को उसी पहाड़ से गिरा लिया। कुछ कहते हैं बस बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन असल सच ये है, खसरू ने झूठ बोला था। शेरें जिंदा थी। बादशाह ने जुल्म को हथियार बनाया
اور وہ ہتھیار بالکل کام آیا۔ وہ سیڑھیاں آج بھی وہی ہیں، ایک ایسی محبت کی یادگار جو کبھی پوری نہ ہوئی، ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں تراشی گئی جسے بہت دیر سے پتا چلا کہ طاقت کے سامنے عشق کی کوئی قیمت نہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ سیڑھیاں واقعی تھیں یا فارسیوں نے انہیں محض ایک علامت کے طور پر گھڑا؟ اور اگر سچ میں تھیں تو کیا وہ آج بھی کسی پہاڑ کی تہوں میں چھپی ہیں، کسی کے ملنے کی راہ دیکھ رہی ہیں؟ سرگوشیوں کی فائل، 7 دنوں کی جنگ، نومبر 1887 مانٹریال کے جنوب میں ریشلیو دریا کی وادی۔ یہاں کچھ ایسا ہوا جو تاریخ کی کتابوں میں دبا دیا گیا۔ انگریز فوج کے 2 دستے، کرنل گور اور کرنل ودرال کی قیادت میں، فرانسیسی کینیڈین علاقے میں گھس آئے۔ حکم تھا، بغاوت کو کچل دو، لیکن جو انہیں ملا وہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ریشلیو دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، کسانوں کے، عام لوگوں کے، مگر ان لوگوں کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ جب خبر آئی کہ فوج آ رہی ہے تو یہ لوگ بھاگے نہیں، ڈٹ گئے۔ سینٹ ڈینس میں کرنل گور کا سامنا ہوا ایک ڈاکٹر سے، نیلسن نام کا آدمی، جس نے گاؤں والوں کو لڑنا سکھایا تھا۔ پیشہ ور فوجی کھلے میدان میں آگے بڑھے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک لیفٹیننٹ مارا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تربیت یافتہ فوج کو گاؤں کے لوگوں نے روک دیا تھا، لیکن تاجی برطانیہ نے شکست قبول نہیں کی۔ ودرال کا دستہ، بڑا، بھاری توپ خانے سے لیس، سینٹ چارلز پر ٹوٹ پڑا۔ اس بار نتیجہ الٹ نکلا۔ گاؤں والوں کی جلدی سے بنائی گئی مورچہ بندی ٹوٹ گئی۔ لوگ سردیوں کے جنگل میں بھاگ نکلے، گھر جلائے گئے، اور پھر ایک خط پکڑا گیا، ایک کاغذ جو اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا، یہ آج تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا۔ 7 دن میں بغاوت دبا دی گئی، مگر سوال باقی رہ گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد ہر رپورٹ میں الگ، کمانڈروں کا کردار ہر دستاویز میں مختلف، اور وہ خط جو سرکاری ریکارڈ میں آج بھی بند ہے، آخر وہ چھپا کیا رہے تھے؟ آپ کے خیال میں اس بند فائل میں کیا راز دفن ہے؟ 1893 کے خزاں میں ایک عورت سوگ کے کپڑے پہنے یارکشائر کے وٹمور اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ اس نے اسٹیشن ماسٹر کو ایک بند لفافہ تھمایا اور قسم لی کہ 10 سال تک اسے کوئی نہیں کھولے گا۔ پھر وہ دھند میں غائب ہو گئی، اور وہ ایک لفافہ، وہ اکیلا بند لفافہ۔ ان سب سے زیادہ جیا جو اس عورت کا نام جانتے تھے۔ ایڈمنڈ کریس ایک محتاط آدمی تھا، 40 برس سے اسٹیشن ماسٹر، جو اپنے رجسٹر ایک پائی سے ملا کر رکھتا تھا اور ہر اس مسافر کو یاد رکھتا تھا جس نے کبھی گاڑی لیٹ ہونے پر شکایت کی ہو۔ جب وہ عورت نومبر کی اس شام آئی تو اس نے سب کچھ نوٹ کیا۔ کچے راستوں کی کیچڑ اس کے سفری لباس پر لگی تھی، لفافہ تھامے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سوگ کا لباس تھا، کالی ریشمی پوشاک، کالے دستانے، مگر لباس میں کوئی تازہ غم نہیں جھلکتا تھا، نہ نیا قریب، نہ تاریخ کی کوئی سوئی، بس پرانا درد جو برسوں سے سنبھال کر پہنا جا رہا تھا۔ اسے کھولنا نہیں، اس نے کہا، 10 سال تک نہیں، جب تک کہ وہ بیچ جملے میں رکھ گئی، جیسے کوئی ایسی بات زبان پر آ گئی ہو جو واپس نہیں لی جا سکتی تھی۔ بس رکھ دو اسے۔ نہ نام بتایا، نہ یہ بتایا کہ لفافے میں کیا ہے یا کس کے لیے ہے۔ بس لفافہ ہاتھ میں دیا، پلٹی اور دھند میں اتر گئی۔ کریس نے اسے اسٹیشن کی لوہے کی تجوری میں رکھ دیا، بھوری کاغذ میں لپیٹ کر، بالکل ویسے جیسے اس نے کہا تھا۔ کسی کو نہیں بتایا۔ 10 سال 1903 میں پورے ہوتے، مگر کریس 1930 میں چل بسا، مہلت سے 2 سال پہلے۔ جب اس کے بعد آنے والے اسٹیشن ماسٹر کو تجوری کی فہرست میں وہ لفافہ ملا تو کوئی نہیں بتا سکا کہ یہ کیا ہے اور یہاں کیوں ہے۔ وہ عورت کبھی واپس نہیں آئی،
किसी को उसका चेहरा इतना याद नहीं था कि बयान कर सके। कोई उसका नाम नहीं जानता था। और अजीब बात ये है, किसी ने उसे खोला भी नहीं। दहाइयां गुजरती रहें। लफाफा एक स्टेशन मास्टर से दूसरे को मुंतकिल होता रहा। हमेशा बंद, हमेशा लिपटा हुआ, हमेशा हाथ ना लगाया गया। शायद ये किसी मरहुमा की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम था। शायद ये डर था कि इंदर किया निकलेगा। 1992 में मरम्मत के दौरान वो लफाफा गायब हो गया। कोई नहीं बता सका कि कहाँ गया। आखिर क्या इकरार था जो वो उस स्टेशन तक लेकर आई थी? कौन सी तनबिया थी जो वो पहुंचाना चाहती थी? और वो सब लोग जो उसकी कहानी जानते थे, उन्होंने उसे अपने साथ ही क्यों दफन कर लिया? आप बताएं, अगर वो लफाफा आज आपके हाथ लगता, तो क्या आप उसे खोलते? कदीम मेसोपोटामिया में एक ऐसी शख्सियत थी जिसके पास बेपनाह ताकत थी, जो दो दुनियाओं के दरमियान चलती थी, देवताओं और इंसानों के बीच, बादशाहों और दुश्मन कौमों के दरमियान। उसे कहते थे सुकाल। और उस एक शख्सियत ने पूरी सल्तनतों की तकदीर बदल दी। सुकाल कोई मामूली नौकर नहीं था। सुमेरी और अकादी दरबार में ये वो शख्स था जो बादशाह का हुक्म दूर दराज इलाकों तक पहुंचाता, सफारतकारों से बात करता और दुश्मन कौमों के दरमियान पुल बनता। ज़रा तसव्वुर करें, ओरिया लगाश का शाही महल, हर तरफ मिट्टी की तख्तियाँ, कातब झुके हुए काम में मसरूफ़, और उन्हीं गलियारों में बारीक कतान के कपड़ों में मलबूस सुकाल, हाथ में असा लिए, सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि बादशाह की नीयत का तर्जमा करने के लिए तैयार। यह सफारतकारी थी, जब सफारतकारी का नाम भी नहीं था। लेकिन यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। मेसोपोटामिया वालों का यकीन था कि देवताओं के भी सुकाल होते हैं। आसमानी खादिम जो इनलेल और इनाना जैसे बड़े देवताओं के कंधों पर खड़े रहते, मशूरे देते और ज़मीन व आसमान के दरमियान पैगाम ले जाते। सबसे मशहूर थी निंशुबुर, खुद एक देवी, मगर पहचानी जाती थी अपनी खिदमत से। मंदिरों की दीवारों पर हमेशा एक ही अंदाज में, हाथ में आसा, सालती की अलामत। और ये तस्वुर फैलता चला गया। मशरक़ में अरफा तक, शाम के शहरों मारी और एलालख तक, यहाँ तक कि आयलाम में पूरी एक सल्तनत का नाम पड़ गया, सुक्काल माह, यानी आज़ीम सुक्काल। हुर्री कौम ने भी ये तस्वुर अपना लिया, अपने देवताओं को भी सुक्काल दे दिए। सवाल ये है, आखिर क्यों ये एक ख्याल कि कोई दरमियान में खड़ा हो, सफारिश करे, पहुंचाए, इतनी गहरी जड़ें पकड़ गया? क्या ये महज़ दफ्तरी निज़ाम का आसमान पर अक्स था, या फिर कदीम इंसान ने इस किरदार में कुछ ऐसा देखा जो वाकई मुक़द्दस लगता था, कि दरमियान में खड़े होना अपने आप में एक फरीज़ा है? आपके ख्याल में सुकाल असल में किस चीज़ की अलामत था? 2023 के मौसमी बहार में एक आदमी की आंख आईसीयू के बिस्तर पर खुली और उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो वहां पहुंचा कैसे। लेकिन जो उसे याद था वो महीनों तक उसका पीछा करता रहा। उसे यकीन था, पक्का यकीन, कि डॉक्टर इंसान नहीं हैं। उनके दांत गलत थे। जब वो सीधा नहीं देखता था तो उनके चेहरे बदल जाते थे। मास्कों और टोपियों के नीचे बलियों के सिर, हरनों के सिर। उसे इस बात पर जरा भी शक नहीं था। हुआ ये था कि एक हादसे के बाद उसकी सांसें रख रही थीं। वेंटिलेटर सांस ले रहा था उसकी जगह। गले में नली, अंधेरे में मशीनों की बेप बेप, रोशनियों का धुंधला सीलाब, सब कुछ एक अजीब ख्वाब में घल गया। दिन गुजरे, शायद हफ्ते, वक्त का कोई हिसाब न रहा। उसके जहन में डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे थे, वो उसे तैयार कर रहे थे। उसे लगा पीठ में कोई कीड़ा घुस गया है। उसे याद था कि उन्होंने कहा वो उसे तंदूर में डालेंगे। उसे याद था कि उसके हाथ पांव काटकर प्लास्टिक के लगा दिए गए।
جب بولنے کی طاقت آئی تو وہ چیخنے لگا، جو بھی سنے اسے خبردار کرنے لگا۔ گھر والے ملنے آئے تو وہ گڑگڑایا، لے چلو مجھے یہاں سے، ان جانوروں کے بیچ مت چھوڑو مجھے۔ لیکن اصل میں کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہسپتال کے ریکارڈ میں سب معمول کا علاج درج تھا۔ نہ کوئی چیرا، نہ کوئی کٹا ہوا عضو، نہ کوئی کیڑا۔ ڈاکٹروں نے اسے نام دیا ICU ڈیلیرم۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ ایک جانی پہچانی کیفیت ہے جو لمبے عرصے تک بے ہوشی کی دوا پر رہنے والے مریضوں کو ہوتی ہے۔ دماغ جب باہر سے کوئی اصلی چیز نہیں پاتا تو اپنی دنیا خود بنا لیتا ہے۔ ایسے خواب جو یادوں سے بھی زیادہ سچے لگتے ہیں، وہ گھر آ گیا۔ ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ ہفتوں بعد کچھ بدل گیا۔ وہ بیوی کے ساتھ ہسپتال گیا، بس خود کو یقین دلانے کے لیے کہ سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک نہیں تھا۔ وہی بے چینی واپس آ گئی۔ پھر آوازیں آنے لگیں، نل سے، AC سے، ہوا سے۔ اس نے چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ انکار قبول کرنے سے آسان لگتا تھا۔ یہاں تک کہ 2 دن پہلے وہ اپنے گھر کے فرش پر گر پڑا، سانس رکھنے لگی، دل بیٹھنے لگا، اور جب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، سکون نہیں آیا۔ اب جو سوال اسے رات کو جگائے رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہ ڈاکٹر اصلی تھے یا نہیں۔ سوال یہ ہے، کیا وہ وہم کبھی واقعی ختم ہوا؟ جب آپ کا اپنا دماغ آپ کو دھوکہ دے چکا ہو، تو پھر آپ کیسے جانیں کہ سچ کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ اگر آپ کا اپنا ذہن آپ کا دشمن بن جائے تو آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ 14 اکتوبر 1987 کی بات ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے ساحل سے 30 میل دور سمندر میں ایک کشتی بے مقصد بہتی مل گئی۔ میری کیتھرین۔ جال ابھی گیلے تھے، انجن کئی دنوں سے ٹھنڈا پڑا تھا، مگر جو چیز بچاؤ دستے کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ گئی وہ یہ تھی کہ کھانے کی میز بالکل سجی ہوئی تھی، پلیٹوں میں کھانا جمع پڑا تھا، اور چھوکے چھملاہ بس غائب۔ کوٹ کھونٹیوں پر لٹک رہے تھے، جوتے دروازے کے پاس قطار میں رکھے تھے، لائیو جیکٹیں نیچے تہہ میں بند تھیں۔ نہ لڑائی کا کوئی نشان، نہ پانی میں کوئی لاش، اور اس ہفتے سمندر بالکل پرسکون تھا۔ اسکاٹ لینڈ کے ساحل پر بسا چھوٹا سا گاؤں اسکیرو پہلے سے مر رہا تھا۔ مہینوں سے مچھلیاں ملنی بند ہو گئی تھیں۔ 300 سال سے جو پانی اس بستی کا پیٹ بھرتا آیا تھا وہ خالی ہو چکا تھا۔ ماہی گیر بے بس تھے، غصے میں تھے۔ کوآپریٹو کی میٹنگیں تلخ بحثوں میں بدل گئی تھیں۔ پھر شمال مغرب سے اٹھنے والی دھند میں کچھ بدلنے لگا۔ لائٹ ہاؤس کا نگران بوڑھا تھامس میکلیئرڈ چائے خانے میں عجیب باتیں کرنے لگا۔ پانی کے اندر سے آتی ایک روشنی کی، سطح پر نہیں، بالکل گہرائی میں۔ کہتا تھا، ستارے کی طرح ٹھہری ہوئی، مگر گہرے پانی میں چلتی ہوئی۔ میک لیورڈ کے یہ الفاظ کہے، ابھی 3 دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ لائٹ ہاؤس سے غائب ہو گیا۔ اس کی ڈائری میز پر ملی، آخری سطر لکھی تھی، یا بلا رہا ہے۔ سرکاری بیان فوراً آ گیا۔ میک لیورڈ تنہائی سے پاگل ہو گیا تھا، اپنی جان لے لی، معاملہ ختم۔ مگر ذرا سوچیں، اس کی ڈائری غائب ہو گئی، لائٹ ہاؤس چھانا، نیچے چٹانیں چھانے، کٹیا چھانی، کچھ نہ ملا۔ میری کیتھرین کو بندرگاہ پر لا کر چند ہفتوں میں کباڑ میں بیچ دیا گیا۔ نہ کوئی انشورنس کلیم، نہ کوئی سرکاری تحقیقات، نہ کوئی رپورٹ۔ 1 سال کے اندر اسکیرو کے سارے ماہی گیر گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ لائٹ ہاؤس آج بھی کھڑا ہے، خودکار مشینوں کے سہارے، اور وہ سمندری راستے چپکے سے بدل دیے گئے۔ تو آخر وہ پانی کے اندر کی روشنی کیا تھی، اور حکومت نے اس سچ کو دفنانے میں اتنی جلدی کیوں دکھائی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو جاننے کا حق نہیں؟ ماں سرگوشیوں کی فائل۔ آسٹروفوبس ایک ستارہ تھا جس نے ایک آدمی کو پاگل کر دیا، کسی ٹکراؤ سے نہیں،
किसी कायनाती शुआओं से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसने कुतबी अंधेरे में रात के बाद रात उसे देखते रहने की ठानी। यहाँ तक कि इस रोशनी में जो कुछ नजर आने लगा वो खूबसूरत नहीं रहा था, वो सच बन गया था। 19वीं सदी में आसमान से एक अजीब लगाव था लोगों को। दौरबीनों ने हैरत को आम कर दिया था। जिस किसी की आंखें ठीक थीं और आसमान साफ था, वो खुद को माहिर फल्कियात समझने लगता था, कोई सूफी, कोई राज का मतलाशी। साइंस और रूहानियत के दरमियान अभी वो दीवार पूरी तरह खड़ी नहीं हुई थी। लोग मानते थे कि सितारे बोलते हैं, बस कान लगाना पड़ता है। ऐसा ही एक शख्स था, एक आलम, जिसका नाम तारीख ने महफूज रखने की जहमत नहीं की, जो कुतबी बर्ज के करीब एक सितारे का दीवाना हो गया। उसने उसे नाम दिया एस्ट्रोफोबस। रात पर रात वह शुमाली आसमान तले बैठा रहता, इस सितारे को घूमते देखता रहता। शुरू में लगा जैसे सितारा भी उसकी तोजा का सलाह दे रहा हो। रोशनी सुनहरी थी, गोया पगला हुआ सोना। जितना देखता इतना यकीन पख्ता होता जाता। ये सितारा बेमकसद नहीं है, ये एक खिड़की है। इन करनों के पार कोई और दुनिया है, खुशी की, रोशनी के पाकीज़ा वजूदों की, ऐसे सुकून की जो इस ज़मीन पर कहीं नहीं मिलता। वो अभी पागल नहीं हुआ था, बस उम्मीद में था। फिर सितारा बदलने लगा। रोशनी के किनारों पर सरखी रेंगने लगी। खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता नहीं गई, वो अलट गई। जिन कर्नों ने कभी निजात का वादा किया था, अब उनमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो वापस देख रहा था। सितारे की रोशनी में जो सुरीली आहंग उसने महसूस की थी, वो बेसरी हो गई। इस चमक में जो शक्लें उसे दिखती थीं, वो अब ऐसी सूरतें बन गईं जिनका नाम किसी ज़बान में नहीं था। सरकारी रिकॉर्ड बहुत मुख्तसर है, उसने मुशाहदा बंद कर दिया। रात के आसमान से भागने लगा। जब साथियों ने तहकीक के बारे में पूछा तो टाल मटोल करता रहा। लेकिन करीबी लोगों ने देखा, वह बदल गया था। इस सितारे में उसने कुछ देखा था, या किसी ने उसे कुछ दिखाया था, और वो बात उसके अंदर इस तरह जड़ पकड़ गई थी जैसे इल्म को नहीं पकड़नी चाहिए। बरसों बाद वह जिससे मिलता, यही कहता, खूबसूरत झूठ सबसे जालिम हथियार होता है। सितारे ने उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहता था। जब तक उसकी आंखें उसके नीचे छिपी हकीकत को पहचानने के काबिल न हो गईं, उसने बाकी जिंदगी रात से मना मोड़कर गुजारी। दौरबीन को कभी हाथ नहीं लगाया, और जो कुछ उसने देखा था उसे कभी नाम नहीं दिया। आप बताएं, आपके ख्याल में उस रोशनी में वाकई क्या था? टिसी थे। इस हफ्ते की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आएं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गई। रोज़ाना नई कहानियाँ और हर इतवार नया कंपाइलेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में।